Good morning, students. This is Mr. Manoj Kumar Singh, and I am your English teacher. Today I am going to teach you this chapter name is conjunction. What do you mean by conjunction? This is a parts of a speech. From that family it has been taken this topic, conjunction. Conjunction मतलब a word that is used to join two or more words, phrases and clauses or sentences. कंजंक्शन दो से अधिक शब्द या दो शब्द, दो वर्ड, दो क्लॉजेस एंड दो सेंटेंसेस. मीन टू से two or more words, two or more clauses, two or more sentences we can add with the help of conjunction. For that, so many words are there. With the help of that, we can add the sentence, we can add the words, we can add the clauses. And the important clauses what? And, but, if, so, because, whether, wherever, though, while. Like that conjunction word, both, either, or, neither, nor, you will get the word in conjunction. But we learn from the grammar and we put our experience in category. There are category of conjunction. Conjunction we can keep it in three category. First category means type, mean to say kinds of conjunction. One is coordinate conjunction, second is subordinate conjunction, third is correlative conjunction. So what is coordinate, what is subordinate and what is correlate? Okay, first of all we will discuss what is coordinate conjunction. जो भी कंजंक्शन है सभी कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है. जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, ये भी जोड़ता है, ठीक है. और इफ बट बिकॉज भी जोड़ता है. लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वह दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को और दो क्लॉज को इक्वल रैंक का दर्जा देता है. जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, राम एंड श्याम दोनों जा रहे हैं, ठीक है. द कंजंक्शन nor is used before the second or two alternative to indicate. I told first and, I gave example am. Now I can give example nor or either. ये सब क्या करता है? दो सेंटेंस को या दो वर्ड को या दो क्लॉजेस को जोड़ता है और दोनों का इक्वल वैल्यू होता है. दैट इज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. इसमें इक्वल रैंक दिया जाता है दोनों वर्ड को, दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लॉज को. मीन टू से अगर एक सेंटेंस में बोलता हूँ राम एंड श्याम प्ले गुड क्रिकेट, इसका मतलब कि राम भी अच्छा खेलता है और श्याम भी अच्छा खेलता है, मतलब इक्वल रैंक दिया जाता है. बट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देयर इज सम वर्ड एंड, बट, फॉर, नॉट. दीज आर द वर्ड्स who gets the value of two words, two clause, two sentence equal rank. Now subordinate conjunction, देखो नाम पढ़ने से पता चलता है कि कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता जाता है सेंटेंस में. तो सबऑर्डिनेट क्या करता है? सबऑर्डिनेट मतलब असिस्ट करना, असिस्टेंट की भूमिका निभाता है. द कंजंक्शन who joins two statements where one depends on other. इस कंजंक्शन में क्या होता है? इसमें पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, मतलब पहले सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस डिपेंड रहता है. क्या रहता है? और कंडीशन लगाता है. क्या कंडीशन लगता है? इफ यू विल गिव मी पेन आई विल गिव माई कॉपी. अगर तुम मुझे पेन देते हो तो मैं तुम्हें अपना कॉपी देता हूं. तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कंडीशन भी बताता है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में वन वर्ड, वन सेंटेंस, वन क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर सिंस, until, if, whenever, wherever, like many words you can get. I have put some example: if, because, for, whenever, since, until, if, unless, though, while. These are the words that can be we can keep it under the category of subordinate conjunction. Or now we are going to just have some awareness about the correlative conjunction. Correlative conjunction क्या करता है? Correlative conjunction work together. It works together to connect element of equal rank in sentence. For example, suppose
first of all, knowing about the words which we can utilize for qualitative conjunction, that is rather. I have written here some word: hardly, when, either, both, whether, rather, that. These are the scarcely also. Hardly and scarcely, the equal words. We can not only but also. These are the neither or neither, either, no sooner did. These all words we can use in correlative conjunction. Correlative conjunction is very much important. Now, one example: Rita excelled. Rita excelled neither in sports nor also in academic. देखिए, एक ही सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, दो काम करती है और दोनों काम का इक्वल वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। इसलिए कहा जाता है कि ये एलिमेंट्स को जोड़ता है। यहाँ पर रीता एलिमेंट्स नहीं है। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है? स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक। रीता जितनी अच्छी स्पोर्ट्स में है उतनी अच्छी एकेडमिक में है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक। दीज आर द एलिमेंट्स एंड रीता इज द सब्जेक्ट। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन इक्वल एलिमेंट्स को बनाता है, एलिमेंट्स को इक्वल रैंक देता है। अनदर एग्जांपल: आई वांटेड टू गेट राधा आइदर अ स्कार्फ और अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे। अब देखिए, स्कार्फ और स्वेटर, इसमें दोनों का इक्वल वैल्यू है, कोई एक दिया जाएगा और दोनों एलिमेंट है। तो इक्वल रैंक एलिमेंट को देने वाला जो कंजंक्शन होता है उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो पहला कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, जिसमें दो शब्द सब्जेक्ट को जोड़ते हैं और इक्वल रैंक रखते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा सब सेंटेंस कहलाता है जो उसको असिस्ट करता है। और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके इसमें एलिमेंट को इक्वल रखा जाता है। दिस इज द चैप्टर फॉर मी। यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर एंड दिस इज important for class 6, 7, 8, 9, 10. That's why I have given some tasks in class 6 also, 7 also, 8 also, and I have completed the exercise. You must complete the exercise. Class 8 स्टूडेंट क्लास 8 स्टूडेंट का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, 6 का 6 करेंगे, 7 के स्टूडेंट 7 को करेंगे। और आपको सभी एक्सरसाइज और क्वेश्चन के आंसर हमने कर दिया है एंड आई विल सेंड यू थ्रू द पीक। But you must study, you must know that which conjunction will be categorized and it will be kept in which category. Thank you.